we have only covered green belt wala portion, which is discrete data wala portion. This is a very, very important concept. प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के स्टैंड पॉइंट से भी और इंटरव्यू के स्टैंड पॉइंट से भी. तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड एमएसए, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है. आई एम सेइंग 5 एक्टिविटीज टू बी डन. एक हमने आइडेंटिफाई करा सीटीक्यू का कैरेक्टरिस्टिक. We built our data collection plan, we collected data, we did our measurement system analysis. इसमें हमको भी पढ़ना है gauge RNR and test retest. And finally, we will move towards the process capability wala topic. Anyone, any questions on DCP, MSA, etc.? या मैं process capability पे move कर जाऊं? Okay, let's start with process capability. Excuse me, sir. Yeah, display your screen is not visible to me. I don't know why. No, it's clear, Others? sir. Yeah, we can see it clear. मैं एक बार अनशेयर करके दोबारा शेयर कर रहा हूं. Yeah. Yes, it is visible to me now. Thank you, sir. Okay. Like the term itself is saying, इस एंडेवर में आप जानना क्या चाह रहे हो? आपका प्रोसेस कितना केपेबल है? And we are essentially looking at capability vis-a-vis the requirement of the customer. So how likely are you to meet the customer need? प्रणय सर, एक चीज पूछना था इससे पहले कि आप आगे बढ़े. लास्ट टाइम व्हेन वी वर डिस्कसिंग एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस, उसमें आपने ना मास्टर कैलिब्रेशन का एग्जांपल शायद नहीं दिया था. आप बोले थे दे देंगे बाद में. आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, ठीक है. तो क्या करेंगे ना, जब इसका अभी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें मास्टर कैलिब्रेटर वाला एक्सरसाइज कर लेंगे. हाँ जी, हाँ जी. ऑलराइट, थैंक यू. So when we are looking at process capability, we are essentially saying vis-a-vis the customer requirement, हमारा प्रोसेस कितना केपेबल है ऑफ मीटिंग व्हाट द कस्टमर आस्क्ड मी टू डू. तो प्रोसेस केपेबिलिटी मेजर करने के लिए वी जनरली यूज 3 इंडाइसेस. एक जिसको हम पीपीएमओ कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में इसी को पीपीएम कहते हैं. दूसरा जिसको हम जेड स्कोर या जी स्कोर कहते हैं. तीसरा जिसको हम सीपीसीपी के पीपीपीपी के कहते हैं. लॉजिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. लेट्स स्टार्ट विथ जेड स्कोर. We are saying Z score का essential मतलब, let's start with a Domino's example. As Domino's, I am saying to the world that 30 minutes में पिज्जा खिलाऊंगा. If my delivery time exceeds 30 minutes, I am going to call it a defect. 30 मिनट से ज्यादा होगा तो I am going to call this as a defect. So this becomes my upper specification limit. Let's assume we have spent time and we have gathered data and we found out that the mean of our delivery time is currently at 28 minutes. Z score is nothing but number of standard deviations
that fit between mean and the specification. मेरा मीन 28 का है, USL या स्पेसिफिकेशन मेरा 30 मिनट्स का है. लेट्स से दैट द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1. तो इस डिस्टेंस में हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशंस कैन यू फिट इन, इसी को हम Z स्कोर कहते हैं. ऑब्वियसली डिस्टेंस 2 मिनट्स है, स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा 1 मिनट है, सो माय Z स्कोर इज इक्वल टू 2. अगर मैं इसको फॉर्मूले से पढ़ूं तो Z on my upper side uses a formula USL minus the mean upon standard deviation. USL मेरा 30, mean मेरा 28 upon 1, which is my standard deviation. So my Z on my upper side is equal to 2. Everyone, simple so far? Yes, sir. Let's take another example. I am saying as a business process, handling time हम gather कर रहे हैं. Handling time का target customer ने हमको दे रखा है 5 मिनट का. Our current mean is, let's say, 3.5. And my standard deviation is, let's say, 0.5. अगर आपको USL available है, you continue to use the Z USL वाला formula, which is USL minus the mean upon standard deviation. USL here is 5 minus 3.5 upon 0.5. So मेरा Z score of the process is at 3. Everyone with me? Yes, sir. So will it be 5? How come 3.5? तो 1.5 को अगर आप 0.5 से डिवाइड करोगे, Okay. ओह सॉरी, Okay. यहाँ 5, सॉरी, दिस इज 0.5, तो ये 3 होगा. करेक्ट ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. वही if you have lower specification limit. Let's take an AIG example. AIG में pass mark is 60. If you score less than 60, तो आप फेल हो जाते हो. तो मैं इसको lower specification limit बोल रहा हूँ. We've gathered data for all these students who've appeared for their exam. We found out that the mean is at a 90. Formula change हो रहा है. Formula now becomes Z on my lower side uses the formula mean minus the LSL upon standard deviation. Mean is 90, LSL is 60. Upon standard deviation, let's assume standard deviation to be 5. 30 by 5. हम currently Z is equal to 6 पे ऑपरेट कर रहे हैं. मेरा सिग्मा स्कोर 6 हो गया. Simple thought so far? So sorry, but when we say Z or Z is equal to 6, so what does it mean? As in, this is Sure. the shortcome, right? Or it's a defect 5 number. मिनट के लिए उसको पार्क जी. करते हैं. पहले कैलकुलेशन जी, सीख जी, लेते हैं. जी, जी, जी. Then we learn to interpret this. Sure. Let me pick up data now. All of you have this file on collections. Let's say I'm doing a project on collections and I'm interested in finding out कि मेरे collections का process capability score कितना है, Z score कितना है. Question number 1 that you will always have to ask yourself कि आपका target क्या है. Let's say that business ने मुझे जो target दिया है
is 8,000. ये क्या होगा, यूएसएल या एलएसएल? कलेक्शंस के केस में लेसर USL. 8,000 से ऊपर कलेक्शन करोगे तो बुरा मान जाएंगे लोग? LSL. Minimum benchmark, sir. lower specification. LSL, sir, LSL. So this is my LSL. The moment you have the LSL, तो जो फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करेंगे वो है LSL वाला, ZLSL equal to mean minus LSL upon standard deviation. इसलिए पहले हमको मीन कैलकुलेट करना है, हमको स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है, इक्वल टू एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू STDEV अब सीधा सीधा मैं फॉर्मूले में यूज कर दूंगा. सो ZLSL इक्वल टू मीन माइनस माई LSL upon the standard deviation. So currently मेरा Z score is operating at 0.378. Everyone, simple so far? Yes. तो क्वेश्चन Yes. नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है जो कस्टमर से मुझे टारगेट मिला था, वो मुझे डिसाइड करना है कि वो LSL है या USL है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट अपन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. सब लोग कलेक्शंस का डेटा निकालिए. कॉलम ई में आपके पास एक डेटा पड़ा है विच इज टाइम ऑन सिस्टम. टाइम ऑन सिस्टम का टारगेट मैंने आपको दे दिया एज 140. प्लीज कैलकुलेट प्रोसेस कैपेबिलिटी. जेड स्कोर इसका कैलकुलेट करके बताइए. टाइम ऑन सिस्टम 140 है. ये यूएसएल है या एलएसएल है? 140 आवर्स से कम आएगा एम्प्लॉय तो बुरा लगेगा, मतलब 140 से ज्यादा आएगा तो कस्टमर एम्प्लॉय तुमको बुरा लगेगा. नहीं सर, सर ये डिबेटेबल है ना, यूएसएल राइट? मिनिमम कैसे होगा? यूएसएल तो मैक्सिमम होता है. सर ये तो फिर भी ये डिबेटेबल LSL है. है. सॉरी, से दैट अगेन. सर ये तो डिबेटेबल है. जैसे लॉ ऑफ द लैंड कहता है भाई तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो ये यूएसएल भी हो सकता है कि भाई तो कर दीजिए, दोनों साइड कर दीजिए. तो मैं आपको 160 कर देता हूं एज योर अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, हाँ, अब ठीक है सर. और ये कर देता हूं LSL. ठीक सर. मीन और सर स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी मैं बीच में कैलकुलेट कीजिए. ओके सर. ओके. मीन कैसे कैलकुलेट होगा? इक्वल टू एवरेज टोटली. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इक्वल टू STDEV. यार ये वाइट स्क्रीन बेटर थी यार. ये हाँ सर, फालतू मैं भी कलर. ये बोलने वाला था सर, वाइट स्क्रीन ही अच्छी है. इट वाज अ बैड आइडिया यार. सो मीन का फॉर्मूला इक्वल टू एवरेज select and the range of the data. Standard deviation का फॉर्मूला equal to STDEV, select the range. So when we get a Z-score, is there a good or bad when it comes to a Z-score? We'll talk. सर यूएसएल कितना है? अभी तो आप सिर्फ LSL
इस्तेमाल LSL कीजिए। निकाल दो ना, हाँ मैं समझ गया। LSL आपके एक- पास 140 आवर्स है। एक सेकंड सर। प्रणय सर, मेरे पास ये कलेक्शन डेटा वाली फाइल नहीं है, आप इसे दोबारा शेयर कर सकते हो? श्योर। यस सर, मेरा भी डिलीट हो गया, so if you can send it again. आई एम पुटिंग इट ऑन व्हाट्सएप। So Pranay sir, it's done for Thank you, LSL. sir. Say that again. Done for LSL, sir. Just one second. The Z मैंने score. भेज दिया। Just one second. क्या वैल्यू आ रही है आपकी? LSL वाली सर आ रही है 0.3373. ओके। So any definite decimal places we have to go for, or 2 is okay, or it's on us? आइडली ये आपने एज अ बिजनेस प्रोसेस डिसाइड कर रखा होगा, नहीं है तो 2 कर लो। ठीक है सर, कोई मतलब डेफिनेट नहीं है इसमें। मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया वो फाइल Mm-hmm. फॉर पीपल हु डोंट हैव दिस। Mm-hmm. Got it. Got it, sir. Thank you. Yes, so LSL 0.337. करता हूं मैं भी। इक्वल टू मीन माइनस माई LSL अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। यस, 0.337। बट सैडली जो हमने यूज किया वो इनकरेक्ट है। अब सब कुछ मिनिटैप पे होगा। एवरीवन प्लीज हैव योर मिनिटैप हैंडी। हिमांशु, आपका मिनिटैप चल गया है? Not yet, sir. ओ गॉड। I have data pasted on Minitab now. Before I use the process capability, या पहले एक बार कर लेता हूं, उसके बाद I go to stats, I go to quality tools, I go to capability analysis, I choose normal, collections या toss का ही बनाता हूं। toss subgroup size 1, मेरा lower specification limit is 140, option वो हमेशा CPPP का कैलकुलेशन करेगा। तो मुझे Z चाहिए, इसलिए मैंने नीचे वाला चूज कर दिया, बेंचमार्क Z। प्रेस ओके, प्रेस ओके, एंड इट विल पब्लिश द Z स्कोर। एवरीवन, कैन यू सी द वैल्यू 0.34? Yes, sir. बट इसको करने के पहले आपको एक्चुअली चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आपका डेटा फॉलो कर रहा है। डेटा टाइप क्या है? So I will first go to quality tools, individual distribution identification. जिस भी डेटा का मुझे capability निकालना है, let's say collections का निकालना है, subgroup size 1, press OK, बहुत सारा information आएगा। Look for the goodness of fit का table.
जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हम एक्सेप्ट करेंगे। इफ यू सी, मेरा सबसे बड़ा वैल्यू जॉनसन्स ट्रांसफॉर्मेशन से आया है। एवरीवन विथ मी? ओके सर एक बार आप फिर से बताना, आपने जेड Yes, sir. स्कोर कैसे मिनी टैप पे निकाला था? इट वाज अब निकालेंगे। 2.3। अभी ये सोचिए कि आप फर्स्ट स्टेप आप यही कर रहे हो, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन। हम्म इफ हमको नॉर्मल वाला ऑप्शन यूज करना है, अगर पी वैल्यू कमिंग फ्रॉम नॉर्मल, बॉक्स कॉक्स या जॉनसन्स अगर हाईएस्ट आया है, तो इधर दी पी वैल्यू कमिंग फ्रॉम नॉर्मल, बॉक्स कॉक्स एंड जॉनसन हाईएस्ट है, तो कैपेबिलिटी कैलकुलेशन में अपन नॉर्मल वाला ऑप्शन यूज करेंगे, नहीं तो अपन नॉन नॉर्मल वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर कोई और लेट्स से ऐसा सिचुएशन होता कि वेबल का हाईएस्ट आता या लार्जेस्ट एक्सट्रीम वैल्यू का हाईएस्ट आता, तो हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? नॉन नॉर्मल। सर, इसमें जॉनसन वाला तो समझ आ गया कि हाईएस्ट होना चाहिए। व्हाट अबाउट नॉर्मल और बॉक्स कॉक्स? तो इसके अंदर लेस देन 0.05 होना चाहिए। अगर अज्यूम और- करिए अज्यूम करिए एक सिचुएशन कि ये 446 यहां ना आके यहां आया होता बॉक्स कॉक्स पे, हाईएस्ट अगर वैल्यू बॉक्स कॉक्स का भी होगा तो भी हम नॉर्मल कैपेबिलिटी कैलकुलेट करने में नॉर्मल वाला ऑप्शन चूज करेंगे। राइट, ठीक है। और नॉर्मल वाले के लिए लेस देन 0.005 ही होना चाहिए, राइट? या इसमें कुछ और होना चाहिए? इसका एग्जांपल देना सर। नो, कंफ्यूज हो गया आप। आई एम सेइंग हाईएस्ट पी वैल्यू किसका आया है, दैट इज द क्वेश्चन। राइट, तो इसके अंदर बॉक्स कॉक्स और जॉनसन देखना है बस। जिसका भी हाईएस्ट आए, ठीक है, ईदर ऑफ दीस। एनी ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऐसा हो। अज्यूम राइट करिए राइट, समझ गया सिचुएशन समझ दैट गया सर। गामा का पी वैल्यू अभी 0.91 होता, तो अपन कहते हैं गामा वाला मेथड चूज करेंगे, और गामा चूज करने के लिए हमको नॉन नॉर्मल में जाना होता। ठीक है, नॉर्मल के लिए बॉक्स कॉक्स जॉनसन है, बाकी सब उनके लिए नॉन नॉर्मल। ठीक है, करेक्ट। So now I am going to stats. Now I am going to stats, quality tools, capability analysis for normal data. Collections का निकालना था मुझे। Collection का मेरा lower specification limit, अरे यार क्या हो गया, was $8,000. Now because Johnson's transformation आया है, इसलिए मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा और मैं यहां से जॉनसन्स ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। अगर बॉक्स कॉक्स का वैल्यू हाईएस्ट होता तो हम बॉक्स कॉक्स सेलेक्ट करते हैं, अगर नॉर्मल का हाईएस्ट होता तो नो ट्रांसफॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं। बिकॉज जॉनसन्स हाईएस्ट है, सो आई हैव क्लिक्ड हियर। आई विल आल्सो हैव टू गो टू ऑप्शंस एंड आई विल हैव टू चूज बेंचमार्क जेड। प्रेस ओके, प्रेस ओके। अब प्रोसेस कैपेबिलिटी निकल के आया 0.32। सर आप ये वाला डेटा सारा टीओएस का ही कर लो ना, क्योंकि वो फिगर्स माइंड में है, रादर देन कलेक्शंस करना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला काम करना है इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन करना है। वहां चेक करना है, चेक which distribution has the highest p value. Let's do it again. मुझे अब टाइम ऑन सिस्टम का करना है। So सर I'm थोड़ा going स्लो to- चलिएगा प्लीज, बिकॉज आई एम Sure. नॉट एबल टू grasp it, आई एम सॉरी।
तो पहला काम इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन, मुझे कैपेबिलिटी निकालनी है टॉस की, टाइम ऑन सिस्टम की, सब ठीक ग्रुप है। साइज 1, प्रेस ओके। गुडनेस ऑफ फिट का टेबल ढूंढो, नीचे स्क्रॉल करोगे तो गुडनेस ऑफ फिट का टेबल आएगा। ठीक है। पी वैल्यू की लिस्ट में सर्च करिए, पी वैल्यू सबसे बड़ा किसका आया है। हियर मे बी जॉनसन है। जॉनसन फिर जॉनसन आ गया। आई एम सेइंग कैपेबिलिटी निकालने में दो ऑप्शन आएगा, एक नॉर्मल, एक नॉन नॉर्मल। नॉर्मल वाला ऑप्शन कैपेबिलिटी का हमको तब चूज करना है जब नॉर्मल आया है डिस्ट्रीब्यूशन, या बॉक्स कॉक्स का वैल्यू हाईएस्ट आया है, या जॉनसन्स का हाईएस्ट आया है। अदरवाइज किसी और का आया, लेट्स से एक्सपोनेंशियल का, या वेबल का, या गामा का, तो अपन नॉन नॉर्मल वाला ऑप्शन चूज करेंगे। बट इन आवर एग्जांपल हमारा पी वैल्यू हाईएस्ट आया जॉनसन्स का। If I go to stats, quality tools, capability analysis for normal data, time on system, subgroup size 1, टारगेट था मेरा 140 घंटे का। ट्रांसफॉर्म जॉनसन्स, ऑप्शंस बेंचमार्क Z, प्रेस ओके, और आपकी कैपेबिलिटी 0.42 आई। पहले किसी ने कोट किया था 160 भी कर देते हैं सर अपर साइड का, कर दीजिए। आपका Z बेंच, अगर दोनों साइड की स्कोर, दोनों साइड USL LSL दोनों डाल दिया तो मेरा कैपेबिलिटी निकल के आया नेगेटिव ऑफ 0.63। Everyone with me so far? सर एक सेकेंड, आप पहले स्टैट्स पे गए व्हेन यू वर एबल टू अपना स्क्रीन डिटरमाइन शेयर कि करना, अपना स्क्रीन शेयर कर। सर मैंने डेटा कॉपी नहीं किया है। आप एक मिनट सुनिए। आप जब when you were able to determine that it was a normal distribution of data, then you went to stats, you went to quality tools, then you went to capability analysis. वहां पे आपने नॉर्मल वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया और वहां पे आपने टाइम ऑन सिस्टम का निकाल रहे थे डेटा, 140 सिलेक्ट किया था। नीचे क्या किया था आपने? मैं वो देख नहीं पाई, सॉरी। नो प्रॉब्लम। हाँ अच्छा, मतलब आपने ओके 140 सेलेक्ट किया जो हमारा टारगेट था, राइट? दोनों कर दिया, किसी ने बोला था 160 भी, तो मैंने या तो आप सीधा सिर्फ 140 करिए या दोनों कर दीजिए। ऑप्शन में जाइए, बेंचमार्क Z को क्लिक कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म में जाइए और जॉनसन्स ट्रांसफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर दीजिए, ओके दबा दीजिए। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए ये p वैल्यू क्या चीज है? आएगा एनालाइज फेज में, प्रोबेबिलिटी वैल्यू है। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि हम रट रहे हैं, हमें जाना है p वैल्यू देखना है, उसका मीनिंग हमें पता नहीं है, फिर ये चूज करना है, वो चूज करना है, मतलब ऐसा लग रहा है ऊपर ऊपर सब रट रहे हैं हम। आई नो, बस एक दो सेशन और लगेगा। जब ठीक है एनालाइज सर। में पहुंचोगे तो पूरा एनालाइज ही पी वैल्यू पे बेस्ड है। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन मेरा बताइए, सब ग्रुप साइज जैसे हमने 1 लिया तो ये क्योंकि हमने सिर्फ एक कॉलम सिलेक्ट करा है इस वजह से 1 लिया है, या मतलब इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? अब तुम्हारा टॉस का डेटा एक कॉलम में पड़ा हुआ है, राइट ना? इसलिए अगर यही तुम्हारे पास 4 अलग अलग टीम का टॉस पड़ा रहता, ओके ठीक है, तो गॉट तुम इट। चारों सेलेक्ट करते हो, लिखते 4। ओके गॉट इट सर, थैंक यू। बॉक्स ऑप्शन नॉर्मल, तीनों में से जिसका भी हाईएस्ट पी वैल्यू होगा हमें ऑलवेज नॉर्मल लेना। दैट केस जॉनसन का पी वैल्यू हाईएस्ट था, तो सर हमें नो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ना? नॉर्मल होता तो नो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। प्लीज रियलाइज दैट
the method for Johnson and Box-Cox are essentially transformation methods. तो अगर आपका p वैल्यू जॉनसन्स का हाईएस्ट आया है या बॉक्स-कॉक्स का हाईएस्ट आया है, वो बोला डेटा नॉर्मल नहीं है, इन दोनों मेथड को इस्तेमाल करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। मत समझिए, ये लॉजिक का नहीं है, ये आप समझिए कि एक सिचुएशन है दैट योर डेटा इज नॉर्मल, दूसरा सिचुएशन है डेटा इज नियरली नॉर्मल, या हम उसको ट्रांसफॉर्म करके नॉर्मल बना सकते हैं। What do I mean when I say ट्रांसफॉर्म करके नॉर्मल बना सकते हैं? So let's say मेरा डेटा है y टॉस, मैं ट्राई करूंगा रूट y, मैं ट्राई करूंगा y स्क्वायर, मैं ट्राई करूंगा रूट क्यूब, मैं ट्राई करूंगा थर्ड रूट ऑफ y, मैं ट्राई करूंगा एक्सपोनेंशियल y, और सबको करके मैं चेक करूंगा कि डेटा नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां इसने क्या बोला कि जॉनसन्स ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करोगे ना तो डेटा तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। तो वहां पर हमको when the moment you are using Johnson's या Box-Cox, you are accepting transformation कि भैया मैं ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करूंगा। QEP वैल्यू हाईएस्ट है। तो सर Because we जॉनसन want की वैल्यू अगर हायर हुई, अगर जॉनसन की वैल्यू हायर हुई तो भी हम नॉर्मल करेंगे, या बॉक्स-कॉक्स की हायर हुई तो भी हम नॉर्मल करेंगे? दोनों में से कोई भी हायर नहीं हुआ, तीनों में से दोनों कोई ही भी, तीनों हाँ। में से कोई भी, तीसरा क्या था? नॉर्मल भी रहा तो भी, बॉक्स-कॉक्स रहा तो ओह भी, या सॉरी जॉनसन्स रहा तो भी, हाँ, लेकिन एंड ईदर ऑफ देम बॉक्स-कॉक्स but Box-Cox and Johnson's are essentially transformation methods. तो आप जब इसको एक्चुअल करने लगोगे तो आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर व्हाट वी डिड, हम यहां जाके ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डेटा को, राइट ना? तो अगर Box-Cox का वैल्यू हाईएस्ट आता तो अपन इस्तेमाल करते कि भाई एक काम कर ले, Box-Cox के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर ले, नहीं तो जॉनसन्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर ले। नहीं, अगर परफेक्ट नॉर्मल रहता तो कहते नो तो नो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म, तब ट्रांसफॉर्म क्लिक भी करते? सॉरी, अगर नॉर्मल डेटा होता तब भी ट्रांसफॉर्म क्लिक करके नॉर्मल मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन सेलेक्ट करते? हाँ, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है, डेटा तुम्हारा ऐसे ही नॉर्मल है। अच्छा, और तीनों में से कोई भी कंपोनेंट मतलब नॉर्मल भी लोअर है और बाकी दोनों कंपोनेंट भी लोअर है, देन वी वुड गो फॉर द अदर रिमेनिंग मेथड्स, राइट? आई मीन नॉन नॉर्मल। अगर मेरा डेटा नॉर्मल आ गया, झंझट ही खत्म। ऑप्शन नंबर 2 ये है तेरे पास जॉनसन्स, और ये नहीं है तो फिर नॉन नॉर्मल वाला ऑप्शन इस्तेमाल करो। तो व्हाट आई विल डू इज इन दैट केस, अज्यूम करो इज अ सिचुएशन दैट तुम्हारा हाईएस्ट वैल्यू आया वेबल का, अज्यूम करो, मतलब आया नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं कि वेबल का हाईएस्ट आया, देन आई गो टू स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, केबिलिटी एनालिसिस फॉर नॉन नॉर्मल डेटा, टाइम ऑन सिस्टम, यहां अपन वेबल चूज करें या व्हाटएवर नॉन नॉर्मल वाला डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिलेक्ट करें, जो भी आया था, लेट्स से वेबल आया है, टॉस का मेरा लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट 140 था, 40 हो गया। ओह सॉरी, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना था, ऑप्शन में बेंचमार्क Z, तो आपका Z स्कोर अगर वेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा होता तो यू वुड हैव सेड योर Z स्कोर इज 0.29। ठीक है सर, ये नॉर्मल और नॉट नॉर्मल है क्या? इफ यू रिमेंबर योर बेसिक स्टैटिस्टिक्स का क्लास, वी वर सेइंग दैट 3 रूल्स हैं। इफ यू हैव द मीन ऑफ योर डेटा और उसमें अब अगर एक स्टैंडर्ड डिविएशन अपन प्लस माइनस ऐड कर दें, दिस शुड ऑलवेज हैव 68% ऑफ योर डेटा। प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड कर दें, इट विल ऑलवेज हैव 95% ऑफ द डेटा। 95 करेक्ट। प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन कर दें तो इट विल ऑलवेज हैव 99.7374% ऑफ द डेटा। अगर ये तीनों रूल कोई डेटा फॉलो कर रहा है, इसको हम नॉर्मल डेटा कहते हैं। अगर ये कोई डेटा इस रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, उसको हम नॉन नॉर्मल डेटा कहते हैं। स्टैंडर्ड बेंचमार्क
क्या किस चीज के लिए? ग्लोबल बेंचमार्क फॉर इंडस्ट्री एक्सेल फॉर फॉर जी बेंचमार्क। आएगा, ये अभी वो डिस्कस करेंगे। सर एक छोटा क्वेश्चन, ये जो Please. इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन के लिए मिनी टैब में जब जाके करते हैं हम, तो सर ये इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ आगे का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे कि कहाँ क्या क्लिक करूँ। अपना एक बार स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट सर। सर सबसे पहले हम नॉर्मलिटी टेस्ट क्यों नहीं करते डेटा पर? नॉर्मलिटी टेस्ट से एक ही बात पता चलेगी, डेटा नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है। ये नहीं पता चलेगा ना कि गामा है कि वेबल है, ये तो सिर्फ बता देगा डेटा नॉन नॉर्मल है। लेट्स से मैं 1 मिनट दोबारा स्क्रीन ले रहा हूँ। श्योर सर। मैं आई वेंट टू स्टैट्स, बेसिक स्टैट्स, नॉर्मलिटी टेस्ट। मैंने टाइम ऑन सिस्टम का नॉर्मलिटी टेस्ट कर लिया, पी वैल्यू 0.05 से छोटा आया, मतलब नॉन नॉर्मल है। लेकिन ये तो नहीं पता चला कि जॉनसन्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म करके ठीक हो जाएगा। So it still leaves a lot of questions unanswered. That is why I chose individual distribution identification. और दोनों With में me? बहुत ज्यादा फर्क आता है सर। I mean, if I go with normal and non-normal, मतलब it's impact a lot in the नहीं यार, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। नहीं आता। नहीं आता। ठीक है, थैंक यू। Please, someone was sharing his हाँ, screen. मैं कर रहा था। हो रही सर? हाँ जी। ये समझ में नहीं आया, मैंने पहुंच कर कुछ रहा था। बॉटम पे जाइए, बॉटम पे जो जहां वो 100% लिखा रहा है उसका थर्ड वाला बटन पहले प्रेस कीजिए। बॉटम राइट, हाँ नीचे जाइए, बिल्कुल बिल्कुल बॉटम बॉटम, यहाँ ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं। एस्केप कर दो उसको, पहले छोड़ दो उसको। ठीक है। नीचे आओ, ऑन द राइट हैंड साइड जहां वो 3 बटन्स आ रहे हैं आपके 100%, जहां और नीचे आओ जहाँ पे सिस्टम का टाइम आ रहा है वो क्या है? हाँ, लेफ्ट जाओ लेफ्ट जाओ लेफ्ट लेफ्ट जाओ, राइट नहीं लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ज्यादा हो गए। जहां वो प्लस माइनस का सिंबल आ रहा है वहां पर 3 साइंस बने हुए हैं। यहाँ पर सर कर्सर नहीं दिख रहा आपका, और नीचे आइए, ये ब्लू वाला रिबन जो है नीचे नीचे, जहां पे वो 100% लिखा हुआ है ना नीचे नीचे। हाँ यहाँ लेफ्ट जाओ थोड़ा सा, बस बस इसके राइट वाला स्क्रीन फिर हट गए। मेरा स्क्रीन देखो 1 मिनट। जी सर। आई एम आस्किंग यू टू यूज दिस बटन। ये जो थर्ड वाला बटन है ये सेशन विंडो है, ठीक है? ओके सर। करिए दोबारा। अब नीचे स्क्रॉल करिए। ओके सर। अब ये देखिए गुडनेस ये आ ऑफ फिट टेबल। गुडनेस ऑफ फिट टेबल में हाईएस्ट स्कोर किसका आ रहा है पी वैल्यू? इसी का आ रहा है, जॉनसन का। जॉनसन का, ठीक। Done. नाउ गो टू स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, कैपेबिलिटी एनालिसिस, नॉर्मल वाला। क्योंकि हम उन 3 ऑप्शंस में हमें डेटा पी वैल्यू हाई होने की वजह से नॉर्मल मिल गया, तो इसलिए हम यहाँ नॉर्मल वाले के थ्रू कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। अदरवाइज सर यहाँ पर हम क्या नॉन नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मल ये वाला सेलेक्ट करते जो आपने बताया था। पहले यहाँ toss आ- कीजिए, पहले ट्रांसफॉर्म कीजिए, ट्रांसफॉर्म पे बटन क्लिक कीजिए, ओके। जॉनसन्स क्लिक कीजिए, ओके। ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए,
बेंचमार्क जेड टारगेट क्लिक कीजिए। बेंचमार्क जेड, टारगेट ना 140 की बात कर रहे हैं सर? नहीं सर, देन नीचे आ रहा है ये बेंचमार्क जेड। अच्छा जेड जेड करेक्ट। ओके, अब सिंगल कॉलम में क्लिक कीजिए अंदर। कहाँ? अच्छा इसमें 140 डबल क्लिक कीजिए, नहीं सर, डबल क्लिक कीजिए टॉस पे, टॉस पे डबल क्लिक कीजिए टॉस पे। सब ग्रुप कर साइज दिया। 1, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट 140। सर ये सब कुछ 1 इसलिए है ना क्योंकि हम जैसे इसमें एक्सेल में जब एक हमने ही डाला बॉक्स था में डेटा तो है। एक ही बॉक्स में डेटा है। हाँ करेक्ट, ठीक है, ओके। जेड बेंच 0.42 आया आपका। 42 दूसरा ठीक किसी इंडेक्स का निकालिए। नाउ डू इट अगेन, स्टैट्स। और तो मैंने सर सारा Quality कॉपी पेस्ट tools। नहीं किया था, एक मिनट रुकिए, अच्छा। सारा मैंने वो एक्सेल वैसे कर लिया था। आपका डेटा ये भी रख रहा हूँ मेरे साथ। एवरीवन प्लीज दूसरा किसी दूसरे डेटा पे भी कैलकुलेट कीजिए। एक्सेल आरपीसी या कोई और डेटा ले लीजिए, उस पे भी कैलकुलेट कीजिए प्लीज। मैं सारा ही कर लेता हूँ ना, हमेशा के लिए हो जाएगा। सर ट्रांसफॉर्म के बाद वाला स्टेप क्या है? स्क्रीन शेयर कर अपना। ये आपका स्क्रीन है दीप्ति? नहीं सर मेरा नहीं है, मैं इससे भी मेरा कर नहीं, रही मैं हूँ। स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, आप कर। सर शेयरिंग माय स्क्रीन। सो दिस इज गुड, जॉनसन क्लिक कर लिया आपने, ठीक है। ओके कर दो, ओके कर दो। ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शंस, ओके ऑप्शंस। यहाँ बेंचमार्क जेड पे क्लिक करो। ओके अंडरस्टूड। ओके, सिंगल कॉलम पे ऊपर जाओ, जहां सिंगल कॉलम आ रहा है, ओके कर दो। ओके, सिंगल कॉलम जहां लिखा रहा है ऊपर जाओ, जहां सिंगल कॉलम लिखा रहा है। हाँ वहां अच्छा, डबल उस क्लिक पे करो, जिसका भी तुमको निकालना है, टॉस का जैसे निकालना है, डबल क्लिक टॉस। ओके, हो गया, हो गया। अच्छा आ गया ये। अब किसी नई चीज का निकालते हैं, फ्रेश। गो टू स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन। यहां कलेक्शंस हटा, लास्ट वाला सिलेक्ट कर ले, C21, प्रेस ओके। नीचे स्क्रॉल करते जाओ। इसका पी अब वैल्यू यहां देखो पी वैल्यू किसका हाईएस्ट आ रहा है? गामा का। गामा का। चलिए, गो टू स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, केबल। इस बार नॉन नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे, नॉन नॉर्मल। यहाँ पे कुछ चेंज करना नहीं ना? पहले पीटीपी कैप्ट कर ले, पीटीपी कैप्ट, हाँ गामा कर ले यहाँ। सिंगल कॉलम में पीटीपी कैप्ट टारगेट डाल, पीटीपी कैप्ट का 40, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट 40। ऑप्शंस, ऑप्शंस ओके हियर। बेंचमार्क जेड पे क्लिक कर दो, बेंचमार्क जेड। ओके कर दूं सर?
हाँ जी, ओके तेरा Z स्कोर कितना आया? -0.54। ठीक है दीपा? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है, प्लीज। मैं आरपीसी पे कैलकुलेट कर रहा था, तो स्क्रीन शेयर करूँ? प्लीज। ठीक है, शेयर है स्क्रीन, देख रहे सर? हाँ हो गया। ठीक है, तो अब मेरे को देखना है, जैसे मैंने निकाला तो मैंने इसमें देखा गुड फिट टेस्ट में जॉनसन हाईएस्ट है अगेन, लेकिन इसमें नॉर्मल नहीं है, तो मतलब ईदर ऑफ दीज होता है या दूसरे को भी ध्यान रखना है? अब नॉर्मल लेस देन 0.005 नहीं है, तो कभी कभार ऐसा होगा कि डेटा नॉर्मल है लेकिन पी वैल्यू 0.05 के बहुत करीब आ गई, तो भी ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, जॉनसन्स को इस्तेमाल कर लीजिए। तो नॉर्मल ही माना जाएगा राइट इसमें भी? हाँ, अच्छा, स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, हमको नहीं दिख रहा, हमको तो अभी भी दिख रहा आपका। अच्छा, क्वालिटी टूल पे गया मैं, देन आई गो टू कैपेबिलिटी एनालिसिस। वी कांट सी, हमको अभी भी आपका इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन वाला स्क्रीन नहीं दिख रहा है। If it is slow or something. अच्छा आप बताओ ना सर, सर क्वालिटी नीचे टूल्स वो पे गया, सेलेक्टेड नहीं है, आई थिंक वो बॉक्स, probably that's why. आफ्टर क्वालिटी टूल सर कहाँ जाना? कैपेबिलिटी एनालिसिस, राइट सर गया, उसके बाद नॉर्मल, राइट? नॉर्मल, एंड देन आई विल डू दी पहला काम करो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर लो, हाँ वो मैंने जॉनसन पे क्लिक कर दिया सर, ऑप्शंस पे क्लिक कर लो, बेंचमार्क Z कर लो। डन सर डन। हमको ना दिख रहा भाई, हमको तो अभी भी हाँ तुम्हारा सर, इंडिविजुअल। समझ गया, क्योंकि मैंने शायद स्क्रीन नहीं विंडो शेयर कर रखी है, इसलिए एक मिनट देना सर। लोड स्पेक 140, इसमें 140 डालूं, इसमें क्या डालूं? ना आरपीसी का टारगेट 140 नहीं डालो, उसमें क्या डालूं, मैंने निकाला आरपीसी का टारगेट मैं बता रहा हूँ। मैंने 500 डाला सर, मैंने भी आरपीसी करा था, 500 डाला है मैंने उसमें। डाल लो 500। अब देख रहे हैं सर चेंज होने के बाद? -0.96, ठीक है, सेम ही है मेरे भी। ठीक है सर, इसमें जब हम एलएसएल और यूएसएल डालते हैं, बाउंड्री का बॉक्स दिखता है, जब अभी दोनों एलएसएल यूएसएल मेंशन होगी तब हमें बॉक्स पे क्लिक करना चाहिए, आई मीन बिकॉज़ वो बताता है कि ग्राफिकली कितना आउट हो रहा है। इज इट इंडिकेटर? नहीं आनंद, वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा सर मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या? हाँ प्लीज। सर कैपेबिलिटी का मतलब सर ये हुआ ना, मतलब जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि हमारा प्रोसेस कितना कैपेबल है, मतलब किस लेवल तक हम उस पे काम कर सकते हैं, और उसे मतलब सकते नहीं है, आपसे बोला जा रहा है करंट तुम्हारी क्या औकात है, तुम करंटली क्या कर रहे हो, ये है Z वैल्यू। ओके ओके सर स्पीड दिखे तो बताना प्लीज। माइनस का मतलब वेरी गुड, माइनस का मतलब बहुत खराब, वेरी खराब, बहुत खराब। फॉर्मूला से सोच के देखो ना, ZUSL का फॉर्मूला क्या था? USL माइनस मीन। अगर तुम्हारा मीन USL से ज्यादा है, मैंने तुमको हैंडलिंग टाइम का टारगेट दिया है 5 मिनट और तुम्हारा 8 मिनट 7 मिनट जा रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा। अभी प्रोसेस नॉलेज स्कोर पे अभी रन किया था, वहां पे 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल वेरिएबल स्मॉलेस्ट एक्सट्रीम वैल्यू, सबका हाईएस्ट पी वैल्यू और सबका सेम है, तो यहाँ पे कोई चॉइस है या किसी को भी पिक कर सकता हूँ? किसी को भी पिक कर लो। सर स्क्रीन दिख रही है तो बताइए प्लीज। 1 सेकंड। हाँ जी दिख रही है। ठीक है सर, तो मैं सर बेसिक से शुरू करता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू दैट। मान लो ये मैंने यूएस का सिलेक्ट किया है, तो
मेरे को मिनी टैब में कैसे यूज करना है, आई एम नॉट कंफर्टेबल दैट। कंट्रोल ए एक्सेल पे जाओ, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए सारा कुछ सेलेक्ट कर लो। ठीक है, पूरा सेलेक्ट कर लिया। कॉपी, कंट्रोल एंड कॉपी आल्सो। ओके, मिनी टैब पे जाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर C1 और नीचे 1 से। नहीं आप टीम लीडर, सबसे ऊपर टीम लीडर पे क्लिक करो, वहां से कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर दो, सारा सेलेक्ट कर लो डेटा। हाँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। मिनी टैब खोल लीजिए। बोला सर, यहाँ से पेस्ट करो नंबर 1 से या ऊपर से, हेडर से? भाई मुझे आपकी एक्सेल शीट दिख रही है, मिनी टैब स्क्रीन नहीं दिख रही है। मिनी टैब स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, नहीं भाई, जस्ट ट्राई वन मोर टाइम। ऑल बैकग्राउंड में देख लीजिए। धीरज, अगर आप डबल स्क्रीन अगर आप शायद 2 स्क्रीन यूज कर रहे हो तो उसको अपनी लेफ्ट वाली या राइट वाली स्क्रीन पे लेकर आ जाओ, ड्रैग करके मिनी टैब को। अभी दिख रहा है सर? हाँ जी, ठीक है, करेक्ट, ये ठीक हो गया। डेटा लग गया। नाउ आई फर्स्ट स्टेप वुड बी दैट आई वुड गो टू स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स। यहाँ पे मेरे को पहला काम इसका अटक गया है, नहीं दिख रहा है। स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन, मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, नाउ आई हैव डेटा। ठीक है, इसमें मैं जो भी सिलेक्ट करना, जैसे TOS मैंने TOS सिलेक्ट किया, राइट? ओके किया, TOS मत सेलेक्ट कीजिए, यूटिलाइजेशन सेलेक्ट कीजिए। यूटिलाइजेशन सेलेक्ट किया, ओके। ओके करना उसके बाद, लेकिन दिख नहीं रहा है हिमांशु, दिख नहीं रहा है मुझे को। नहीं रहा। Just do one thing. Just do one thing. Unshare and click share and then share entire system. कोई इंटायर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हाँ होता है कभी कभार यार। Entire screen कर दो आप, तो फिर हाँ, वो बेस्ट होता है, बट वो आ नहीं रहा है। अच्छा, दैट्स व्हाई कर लो, दोबारा कर लो, क्या दिक्कत है? लेट्स डू इट अगेन। लेट मी सी इफ इट्स विजिबल नाउ। आ गया। ठीक है, यूटिलाइजेशन पे डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक किया, ओके। सब ग्रुप साइज 1, ओके। प्रेस ओके। क्या टेकिंग टाइम, बट यहाँ से मेरे को भी यहाँ से P वैल्यू पता चलेगी। मेरे को पता चलेगा कि मेरे को नॉर्मल है या नॉट नॉर्मल है, राइट? आई विल जस्ट गो डाउन। और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, राइट? सो आई वेंट टू गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ओके। देन आई फाउंड व्हिच इज द हाईएस्ट P वैल्यू। कौन सा हाईएस्ट आया? फिर वही जॉनसन्स दिख रहा है। जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन या 0448, राइट? चलिए, स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, कैपेबिलिटी एनालिसिस, नॉर्मल, राइट? पहला काम कीजिए ट्रांसफॉर्म, जॉनसन सेलेक्ट कर लीजिए। जॉनसन, ओके। ऑप्शंस, ओके। बेंचमार्क Z सेलेक्ट कर लीजिए। बेंचमार्क Z, राइट? ओके। अब सिंगल कॉलम पे क्लिक कीजिए, यूटिलाइजेशन C6, डबल क्लिक, सब ग्रुप साइज 1, टारगेट रख लीजिए 0.75। 0.75, हाँ, एवरीवन प्लीज रिमेंबर दिस, परसेंटेज में अगर डेटा है तो मिनी टैब उसको डेसिमल पढ़ेगा। ठीक है।
Press OK. Right. आपका करंट Z स्कोर कितना आया? -0.6. Okay, sir. Thank you. Dheeraj, can you stay on the screen? Sir, I have Yeah. one question. Please. So when we can you pull that same data, stats, and where we Yeah. get the Johnson and every other information? Let me know where I need to go. Which one? This one? Capability one? Yeah. Yeah. At No, this sorry, screen? not this one, where we get the P scores. Okay. लेफ्ट साइड में, हाँ वो नहीं लेफ्ट साइड में आ रहा है वो धीरज ऊपर देख, हाँ उसके ऊपर, करेक्ट. Yeah. So in this, sir, of course Johnson का सबसे ज़्यादा है, but I also noticed कि जैसे गामा का 0.006 है, right? But how do we decide कि ये नहीं लेना है और मुझे जिसका हाईएस्ट पी वैल्यू है हिमांशु उसको लेना है, सिर्फ उसी फोकस करना है? ओके. ओके, एंड अदर थिंग इज जहाँ पर सिंगल सिलेक्शन आता है, जब यूटिलाइजेशन हमने सेलेक्ट किया है वहाँ पर लाइक यू सेड कि हम 4 लिख सकते हैं. डज दिस मीन कि मुझे सब कॉलम नेम में सिमेट्री चाहिए, और डू वी हैव मल्टीपल? धीरज जाओ जरा स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, क्वालिटी एनालिसिस, नॉर्मल. कैन यू सी उसके नीचे एक और बॉक्स आ रहा है, सब ग्रुप अक्रॉस रोज. करेक्ट. दिख रहा है? यस. तो अगर आपके पास यही टाइम ऑन सिस्टम 4 अलग अलग टीम लीडर्स का होता, वो वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और वो चारों कॉलम अपन सेलेक्ट कर देते हैं. अंडरस्टूड. ओके, थैंक यू. थैंक्स धीरज. थैंक यू सर. इसमें अच्छा 75% रखा है. ओके ओके, थैंक यू. एवरीवन, वी आर गुड सो फार. प्रणय सर एक सेकंड, मैं बस ना एक बार छोटा रिवीजन कर लेती हूँ आपके साथ और सबके साथ. So we were studying about process capability, wherein Z-score was one of the measuring indices, correct? So Z-score का आपने जो definition बताया था, it was actually the number of standard deviation that fits in between the mean and the USL oblique lower specified limit जो आपने बताया, ठीक है? उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम डेटा पेस्ट करेंगे हमारे मिनी टैब पे. उसके बाद हम उसका इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन में जाके देखेंगे किस पर्टिकुलर कंपोनेंट का पी वैल्यू कम या ज्यादा है, मतलब वेदर द डेटा इज नॉर्मल और नॉन नॉर्मल. और नॉर्मल होने के लिए इट शुड फॉलो दैट फॉर्मूला ऑफ मीन प्लस माइनस 168, 295 एंड 399. नॉर्मल है तो उसके बाद हम इसको फर्दर कैपेबिलिटी एनालिसिस उस डेटा का करेंगे. नॉन नॉर्मल है तो फर्दर कैपेबिलिटी एनालिसिस करेंगे. बस यही पढ़ा ना हमने अभी? करेक्ट. ठीक है सर. ओके. Dipti has a question, I guess. No. Just to add on to what is just to summarize, Shweta. Yes. हम जब नॉर्मल जब हम गुड वाला जो टेस्ट करते हैं, जिसमें देखते हैं कि गामा है क्या है, तो वी डोंट हैव टू डू चेक, मतलब मीन निकालने की जरूरत नहीं है. अगर वहां पे बॉक्सकॉक्स या फिर जॉनसन है तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेंगे कि डेटा नॉर्मल है, राइट? That we will check the p value. That's what I said. We will first check the p value ki data, just to determine whether the data is normal or non-normal, as sir said, whether it needs to be transformed or not, right? Yes. All right. सर एक चीज और कंफर्म कीजिए मुझे, ये जो आपने 3 बताए हैं, ये गामा वाला या जॉनसन वाला, जो 3, ये अगर 3 इन सारे में ये 3 अगर हाईएस्ट होते हैं तो हम इसे नॉर्मल मानेंगे, करेक्ट सर? ऐसा कुछ है? फिर से बोलिए. मैं कह रहा हूँ ये जो इसका आंसर मैं बता देती हूँ. सर ने कहा था अगर जॉनसन का पी वैल्यू ज्यादा है या बॉक्सकॉक्स का है या डेटा हमारा नॉर्मल है, देन वी विल कंसिडर द डेटा एज नॉर्मल. एल्स बाकी किसी कंपोनेंट में पी वैल्यू आपका ज्यादा आ रहा है, देन वी विल कंसिडर द डेटा एज नॉन नॉर्मल. If the I highest answered value of any of them, the p value, there is a column which says p value on the top. You have to look at that column. कि p value ज्यादा किसका है, यही सर ने भी तो अगर ये इन
इन तीन का पी वैल्यू हाईएस्ट अगर नहीं आता है तो हम नॉन नॉर्मल मानेंगे। Yes, then the नॉर्मल data और is बॉक्स और non-normal. If जॉनसन you वाला। get value anywhere higher, like exponential, visible वगैरह कुछ था और gamma types. अनुराग, it's either of those three. Yeah, तो either of them. अगर दूसरे में किसी का हाईएस्ट आया तो नॉन नॉर्मल, अगर इन तीनों में से किसी का हाईएस्ट आया तो नॉर्मल। सर नॉर्मली तो डेटा नॉर्मल, अगर आपके टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं तो नॉर्मल होगा ही नहीं ना, मैं ये भी सोच रहा था। बहुत खतरनाक है ये अज्यूम करना। Don't get into that kind of चुटकुला। ठीक है सर, उसको उसके फेस वैल्यू पे ही रहने दो। सर ब्रेक दे दो। ठीक है, let's take a break everyone, 15 minutes। वहाँ से शुरू करते हैं सर। 15 minutes, right? Thank you. Yeah, 15 minutes.